Hello, good morning to everyone. I am Pradeep, and today the first lecture of the power system. In the first lecture, we have discussed the concept. I have to discuss the concept of power systems. Power system is basically divided into three parts. First one is generation, second one is transmission, and third is distribution part. So in the generation part, the voltage is generated at 15,000 kV या 15 kV या 11 kV. ठीक है, sometimes it is 11 kV and these are the standard voltage which is generated in India, 11 kV or 15 kV. Okay, so this high voltage is stepped out with the help of the power transformer up to 220 kilovolt या 400 kilovolt, and that is the transmission part is starts. Okay, transmission has two parts. First one is primary transmission and secondary transmission. The high voltage यानी 200 kV and 400 kV is called primary transmission line, and next this voltage is stepped down. This is called the secondary transmission line. Okay, that is 132 kV or 66 kV. These are the secondary transmission line. So after this, the distribution start at the substation. The consumers are schools, hospitals, industry. ठीक है, तो based on that the distribution voltage are 33 kV, 11 kV या 400 kV या 230 volt. Okay, so distribution part is also divided into two parts. First one is primary distribution, second one is secondary distribution. In the primary distribution, the voltage level are 11 kV or 33 kV, and which is used in industry and hospitals. Okay, and the secondary distributions are 400 kV, which is used to start the motor 3-phase, that is 400 volt, and for single phase supply for the home purpose, this is 230 volt, yani that is single phase 3 phase 4 wire. Okay, yani RYB and neutral part, 3 phase 4 wire system. Okay, so these are the basic concept of the power system, which is categorized in generation, transmission and distribution part. Okay, above network are constructed with the 3-phase network. Okay, but in the power system, these three phase networks are not reliable to the represent again and again. That's why we use single line diagram. In single line diagram, we use single voltage levels which represent as a 3-phase level. Okay, suppose that this is your generation part. Okay, generation part, this is step up voltage, then step down, and this is your load. तो 15 किलोवोल्ट टू 220 किलोवोल्ट, 220 किलोवोल्ट से 130 किलोवोल्ट स्टेप डाउन एंड सो ऑन. ठीक है, तो ये आपका जो लाइन वोल्टेज हो गया, ये आपका 11 kV, 33, 132, 220, 400 kV, 765 kV. These are line to line voltage. Okay, 3-phase voltage level, and the single phase voltage, that means 230 volt. Okay, तो अगर हम किसी पावर सिस्टम को अगर वन लाइन डायग्राम में रिप्रेजेंट करें इन प्लेस ऑफ 3-phase लाइन, ओके, दैट इज कॉल्ड सिंगल लाइन डायग्राम. दिस इज योर जनरेशन, दिस इज योर ट्रांसफार्मर, दिस इज योर ट्रांसमिशन लाइन, दिस इज योर अगेन ट्रांसफार्मर, दिस इज योर जनरेशन एंड दिस इज योर लोड पार्ट. तो सपोज दैट यहाँ पे जनरेशन, इसके रेटिंग दिया हुआ है. जनरेशन कितने वोल्टेज पे जनरेट हो रहा है, 10 किलो वोल्ट पे. इसका रेटिंग कितना है पावर का, 15 MVA मेगा वोल्ट एम्पियर, और जनरेशन का सिंक्रोनस रिएक्टेंस कितना है, 0.4. ठीक है, आपने जनरेटर पार्ट में पढ़ा होगा सिंक्रोनस मशीन का या सिंक्रोनस जनरेटर का, उसका सिंक्रोनस रिएक्टेंस या सिंक्रोनस इम्पीडेंस पार्ट यहाँ पे आ रहे होंगे, नेग्लिजिबल किया तो दैट इज सिंक्रोनस रिएक्टेंस.
सपोज द ट्रांसफार्मर है, तो ट्रांसफार्मर का स्टेप लो वोल्टेज एंड हाई वोल्टेज, ये आपका रेटिंग दिया है वोल्टेज का, और ये ट्रांसफार्मर का पावर है कितना 25 MVA का, और इसका लो साइड का इसका इम्पीडेंस दिया हुआ है, ठीक है 0.2 J पर यूनिट। ट्रांसमिशन लाइन का इसी प्रकार यहाँ पे शो किया गया है। ट्रांसमिशन लाइन का रिएक्टेंस कितना है 400 ओम। इसी प्रकार ट्रांसफार्मर T2 का जो कि स्टेप डाउन, यहाँ पे स्टेप अप किया गया तो यहाँ पे स्टेप डाउन 100 से 5 किलोवोल्ट, इसका रेटिंग कितना 15 MVA, और T2 साइड हाई वोल्टेज साइड का कितना इम्पीडेंस है 0.2 पर यूनिट। ओके, फिर दिस इज योर अगेन जनरेशन G2 एंड हियर इज लोड। तो इस सेकेंडरी जनरेशन का जनरेटर का कितना वोल्टेज है 5 किलोवोल्ट, इसका जनरेशन वोल्टेज है 10 MVA इसकी रेटिंग है, और इसका सिंक्रोनस रिएक्टेंस कितना है 0.2 ओम। ओके, और नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द पावर सिस्टम। तो पावर सिस्टम हम यूज़ करते हैं अपने, हम अगल बगल घर के चारों तरफ देखते हैं जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है? फर्स्ट वन इज कॉस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर किलोवाट आवर हैज टू बी मिनिमाइज, ठीक है। दैट मीन्स जो आपका इलेक्ट्रिसिटी का जो कॉस्ट है वो मिनिमाइज होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। इसके लिए क्या क्या मेथड होते हैं जिसमें हम क्या इकोनॉमिक लोड डिस्पैच करते हैं, ठीक है। किस प्रकार के लोड डिस्पैच होने चाहिए जिससे कि आपका मिनिमम कॉस्ट है। इकोनॉमिक फैक्टर है, क्या क्या फैक्टर डिपेंड करते हैं कॉस्ट पे, और जनरेशन फैक्टर क्या इफेक्ट करता है कॉस्ट पे। ओके, रेटेड वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी हैज टू बी सप्लाई टू द कंज्यूमर्स। नेक्स्ट है जो हम घरों में जो वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी होती है, तो वो जो वोल्टेज हमारे 230 वोल्ट या 400 वोल्ट आता है वो कांस्टेंट वैल्यू होना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा फ्लक्चुएशंस आएंगे, इससे हमारे डिवाइसेस क्या होंगे वो हार्मफुल हो जाएंगे या ख़राब हो जाएंगे। तो इससे हमारा रेटेड वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी फिक्स होनी चाहिए, ठीक है। इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कौन से चैप्टर लोड फ्रीक्वेंसी कंट्रोल एंड वोल्टेज और रिएक्टिव पावर कंट्रोल हम देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रिलायबल पावर सप्लाई है तो अवेलेबल। इसके लिए क्या है, जो हमें पावर सप्लाई आ रही है घरों तक वो रिलायबल होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन और हाई वोल्टेज डीसी सिस्टम, ठीक है, इसकी हेल्प से रिलायबल पावर सप्लाई होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका इफेक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम हैज टू बी used so that they must be more stable under fault condition. Effective protection system has to be available for faster identification and isolation of faulty section। क्योंकि पावर सिस्टम है तो इसमें सडन फॉल्ट क्रिएट होते हैं, ठीक है। जैसे आपका लाइटनिंग हो गया, ठीक है, जैसे बादल का गरजना और इस लाइटनिंग हो गई, तो इसकी वजह से क्या होते हैं पावर सिस्टम में फॉल्ट आते हैं। ये आपका सिंगल लाइन टू फॉल्ट हो सकता है, डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट हो सकता है, 3 फेज लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट हो सकता है, या लाइन टू लाइन फॉल्ट हो सकता है, ठीक है। तो इस केस में क्या होना चाहिए, इफेक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम प्रोवाइड करना चाहिए पावर सिस्टम, जिससे कि वो क्या करे प्रोटेक्शन सिस्टम जो आपका फॉल्टी पार्ट है उसको अलग कर दे और हेल्दी सिस्टम आपका सेपरेट कर दे, ठीक है। इसके लिए हम फॉल्ट एनालिसिस और प्रोटेक्शन सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मोस्ट इफिशिएंट जनरेटर हैज टू बी यूज्ड सो दैट दे मस्ट बी मोर स्टेबल अंडर फॉल्ट कंडीशन। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, स्टेबिलिटी टॉपिक हम डिस्कस करते हैं। और फ्लेक्सिबल पावर ट्रांसफर है टू अवेलेबल टू द कंज्यूमर, तो इसके लिए हम पावर केबल्स या ओवरहेड केबल्स यूज करते हैं। तो ट्रांसमिशन के लिए बेसिस क्या होते हैं, बाय यूजिंग ट्रांसमिशन लाइन इलेक्ट्रिकल पावर इज ट्रांसफर फ्रॉम द रिमोट जनरेटिंग स्टेशन टू द लोड सेंटर वेयर द इलेक्ट्रिकल पावर इज यूटिलाइज। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रांसमिशन क्या होते हैं, सबसे पहले आपका पावर ट्रांसमिशन कैपेबिलिटी ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन मस्ट बी हाई होनी चाहिए विथ मिनिमम ट्रांसमिशन लाइन लॉसेस, ठीक है। क्योंकि आपका ट्रांसमिशन लाइन कंडक्टर्स होता है उसमें रेजिस्टेंस होंगे जिससे कि आपको उसमें हीट होगा, दैट इज ए लॉस, तो वो आपका लॉस सबसे कम होना चाहिए, ठीक है। दूसरा है नेक्स्ट वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन मस्ट बी मिनिमम और जीरो। वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है,
सपोज दैट आपका जो रिसीविंग एंड है या लोड पे जो वोल्टेज है, अगर आप सडन आप लोड हटाते हैं तो वोल्टेज का फ्लक्चुएशन बहुत कम होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। अदरवाइज फ्लक्चुएशन होगा तो वो आपके सिस्टम के लिए हार्मफुल है। ठीक है, तो दीज आर द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। नेक्स्ट टॉपिक है आपका पर यूनिट मेथड। सपोज दैट ये आपका एक पावर सिस्टम है, जनरेशन है, ट्रांसफार्मर है, ट्रांसमिशन लाइन है। ठीक है, अगर हम इसको एक्चुअल यूनिट में यूज करते हैं, दैट मीन्स इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी। सपोज दैट ये आपका ट्रांसमिशन का लो साइड वोल्टेज है, ये हाई वोल्टेज लाइन है, 11 kV 400 kV, ये आपका 100 एम्पियर इधर करंट है, इधर आपका हाई वोल्टेज है तो यहाँ पे आपका 10 एम्पियर है। तो यहाँ पे इम्पिडेंस आपका इधर साइड का क्या होगा, इम्पिडेंस क्या होता है, Z = V/I। ठीक है, तो यहाँ से V/I और ऊपर नीचे V का मल्टीप्लाई करेंगे तो किलो वोल्ट स्क्वायर डिवाइड बाई MVA से डिवाइड करेंगे तो आपका इम्पिडेंस निकल आएगा। तो यहाँ पे लोअर साइड में आपका इम्पिडेंस कम है, हायर साइड में इम्पिडेंस कम है। ठीक है, तो अगर हम पावर सिस्टम में अगर हम रियल इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी हम यूज़ करते हैं तो उसमें हम हर जगह देखेंगे कि इम्पिडेंस कहीं पे हमें रेफरेंस से मेजर करना पड़ता है कि हम प्राइमरी साइड से ले रहे हैं कि या सेकेंडरी साइड से ले रहे हैं, क्योंकि प्राइमरी साइड में क्वांटिटी कुछ है, सेकेंडरी साइड में क्वांटिटी कुछ है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पर यूनिट मेथड यूज करते हैं। पर यूनिट ट्रांसफार्मर में आपको मैंने पढ़ाया होगा पिछले क्लास में कि ट्रांसफार्मर का पर यूनिट इम्पिडेंस आपका इक्वल होता है। ठीक है, सपोज दैट ये आपका ट्रांसफार्मर है, अगर इसको हम पर यूनिट में क्वांटिटी कन्वर्ट कर देते हैं तो सपोज दैट आपका ये पर यूनिट इम्पिडेंस, पर यूनिट करंट इधर 5 पर यूनिट आ रहा है, तो सेकेंडरी साइड में 5 पर यूनिट करंट आएगा। तो पर यूनिट में आपका जो प्राइमरी साइड का इम्पिडेंस और सेकेंडरी साइड का इम्पिडेंस होता है वो इक्वल होता है। ट्रांसफार्मर में आपने पढ़ा होगा कि प्राइमरी साइड का इम्पिडेंस और सेकेंडरी साइड का पर यूनिट इम्पिडेंस आपका इक्वल होता है। तो इस केस में हमें प्राइमरी और सेकेंडरी का रेफरेंस लेना नहीं पड़ता है, तो दैट इज द एडवांटेज ऑफ द पर यूनिट मेथड। ठीक है, तो इसमें प्रॉब्लम ऑफ साइड इज रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो ये पर यूनिट मेथड यूजेस पर यूनिट वैल्यू, ये पर यूनिट वैल्यू इज यूनिट लेस क्वांटिटी। ठीक है, पर यूनिट वैल्यू हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, एक्चुअल वैल्यू इन द सेम यूनिट डिवाइड बाई बेस वैल्यू इन द सेम यूनिट। एक्चुअल वैल्यू और उसको बेस वैल्यू से डिवाइड कर दीजिए, दैट गिव द रिजल्ट ऑफ पर यूनिट। अगर पर यूनिट को 100 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वो आपको परसेंटेज वैल्यू देगा। ठीक है, यहाँ पे हमने 2 एग्जांपल लिया हुआ है। सपोज दैट रेटिंग ऑफ द वोल्टेज कितना है, 400 kV, बेस वैल्यू हमने एज्यूम किया है कि 100 kV है। ठीक है, तो अगर हम इसको पर यूनिट निकालना चाहेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, एक्चुअल वैल्यू यानी ये डिवाइड बाई बेस वैल्यू कितना है 100, तो ये आपका 4 पर यूनिट हो गया। ठीक है, तो पर यूनिट का वैल्यू यहाँ पे हमने बेस लिया यानी 1 पर यूनिट इक्वल टू कितना है 100 kV वोल्ट है। तो अगर हम 400 kV है तो कितना पर यूनिट होगा 4 पर यूनिट। सपोज दैट वी रेटेड आपका 400 kV है, वी बेस हमने लिया 400 kV, तो यहाँ पे पर यूनिट कितना होगा 1 पर यूनिट। ठीक है, एक्चुअल वैल्यू अपॉन डिवाइड बाई बेस वैल्यू इस फॉर्मूले से। तो यहाँ से 1 पर यूनिट की वोल्टेज की वैल्यू कितना होगा 400 kV। ओके, तो एडवांटेज ऑफ पर यूनिट क्या होता है, इट सिंप्लीफाइज द पावर सिस्टम कैलकुलेशन एंड इट अवॉइड द डिस्काउंटिंग प्रॉब्लम posed by the presence of transformer in the power system network। ठीक है, यानी ये प्रॉब्लम ऑफ द प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड को रिमूव कर देता है। ठीक है, अब आते हैं सिलेक्शन ऑफ द बेस वैल्यू हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो सिंगल फेज सिस्टम है पर सपोज दैट तो बेस पावर क्या होगा किलो वोल्ट एम्पियर, ये सफिक्स जो बी है तो इसका मतलब बेस है, और MVA हो गया पावर है तो वो किलो वोल्ट एम्पियर में हो सकता है या मेगा वोल्ट एम्पियर में भी हो सकता है। P रिप्रेजेंट करता है बेस वैल्यू, बेस वोल्टेज क्या होगा किलो वोल्ट बेस वैल्यू। ठीक है, तो सपोज दैट तो बेस करंट IB की बात करेंगे तो S इक्वल टू क्या होता है V इंटू आई, तो बेस करंट क्या होगा IB इक्वल टू किलो वोल्ट एम्पियर बेस डिवाइड बाई किलो वोल्ट इंटू। ठीक है, अगर यहाँ पे जो पावर है अगर हम उसको MVA में देखें तो इसको
क्योंकि क्या होता है MVA इक्वल टू क्या होता है 1000 इंटू KVA। तो KVA से क्या है MVA डिवाइड बाई 1000। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए MVA डिवाइड बाई 1000। ठीक है, तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या होगा 1000 नीचे है, तो इसको बैलेंस करने के लिए क्योंकि रिप्रेजेंट करना है किसमें MVA में रिप्रेजेंट करना है, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो ये क्या होगा इसमें MVA में रिप्रेजेंट करेगा। इसके लिए आप ये भी सिंपल से आप समझ सकते हैं, सपोज दैट क्योंकि V इक्वल टू IR होता है। ठीक है, ये हम जानते हैं ओम्स लॉ। अगर सिस्टमिकल रेजिस्टेंस है, अगर हम उसमें इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस यूज करते हैं तो रेजिस्टेंस की जगह इम्पीडेंस यूज करते हैं V इक्वल टू IZ। ठीक है, तो जहाँ से इम्पीडेंस क्या हुआ V अपान I V का। ठीक है, तो इसमें Z इक्वल टू V अपान I। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया वोल्टेज से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, V अपान I था, इसमें वोल्टेज से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये क्या हो गया V स्क्वायर डिवाइड बाई V इंटू आई क्या होगा S, जिसको हम वोल्ट एम्पीयर कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको MVA में रिप्रेजेंट करते हैं तो किलो वोल्ट स्क्वायर डिवाइड बाई MVA। अगर हम इसको KVA में रिप्रेजेंट करते हैं किलो वोल्ट स्क्वायर डिवाइड बाई KVA इंटू 1000। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज किया गया है। ठीक है, तो बेस इम्पीडेंस क्या होगा किलो वोल्ट स्क्वायर डिवाइड बाई MVA। अगर MVA को ना रिप्रेजेंट करके KVA में रिप्रेजेंट करना है तो इसमें 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले आप याद रखेंगे, इसी के बेस न्यूमेरिकल्स हम देखेंगे आगे चल के। नेक्स्ट है बेस वोल्टेज, सपोज दैट 11 kV है, बेस पावर इतना है, तो जेड बेस ओम में कितना होगा, तो इसी वाले फॉर्मूले से MVA में दिया हुआ किलो वोल्ट स्क्वायर डिवाइड बाई MVA, तो ये कितना हो गया ये इतना ओम हो गया इम्पीडेंस। ठीक है, फॉर कन्वर्टिंग एक्टिव पावर रिएक्टिव पावर पर यूनिट सिस्टम वी यूज सेम बेस के लिए। ठीक है, अगर सपोज दैट आपका एक्टिव पावर हो चाहे रिएक्टिव पावर हो, उसको हम अगर पर यूनिट में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके लिए हम कॉमन बेस वोल्टेज यूज करते हैं, यानी ये इसकी बात कर रहा है। ठीक है, अगर सपोज दैट एक्टिव पावर सपोज दैट आपका 40 किलो वोल्ट दिया हुआ है, 40 किलो वाट, बेस वोल्टेज आपका दिया 100 kVA, तो 40 डिवाइड बाई 100 कर दिया, एक्चुअल वैल्यू डिवाइड बाई बेस वैल्यू, तो ये आपका कितना होगा पर यूनिट वैल्यू। ठीक है, सॉरी नेक्स्ट है आपका 3 फेज सिस्टम के लिए, सपोज दैट बेस पावर है तो किलो वोल्ट एम्पियर बेस, MVA बेस 3 फेज के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि अभी हमने सिंगल फेज देखा था, 3 फेज के लिए देख रहे हैं 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो बेस वोल्टेज क्या होगा किलो वोल्ट बेस लाइन, और आपका क्या होगा लाइन के लिए वोल्ट डिस्कस करेंगे तो √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये हो गया आपका 3 फेज सिस्टम के लिए। तो पावर आपका क्या होगा 3 फेज के लिए S3 फेज इक्वल टू √3 VL इंटू IL। तो यहाँ से बेस करंट क्या आएगा, बेस करंट क्या होता है S इक्वल टू क्या होता है √3 V इंटू I। ठीक है, तो S इक्वल टू किलो वोल्ट बेस फॉर 3 फेज इक्वल टू क्या होगा √3 इंटू वोल्टेज इंटू करंट। तो यहाँ से √3 किलो वोल्ट बेस, ये किलो वोल्ट एम्पियर नहीं होगा, ये किलो वोल्ट बेस होगा यहाँ पे लाइन। ठीक है, अगर सपोज दैट इसको हम MVA में रिप्रेजेंट करते हैं, MVA 3 फेज √3 किलो वोल्ट बेस लाइन इंटू, इसमें आप 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे फ्रॉम द प्रीवियस फॉर्मूला। अब हम इम्पीडेंस इन ओम देखते हैं, तो जेड बेस 3 फेज के लिए क्या होगा किलो वोल्ट बेस का स्क्वायर डिवाइड बाई MVA बेस 3 फेज फॉर 3 फेज। ठीक है, तो लाइन को अगर हम इसको फेज में कन्वर्ट करते हैं, V फेज इक्वल टू क्या होता है VL बाई √3, तो यहाँ से फेज में कन्वर्ट किए और यहाँ पे ये 3 इंटू MVA बेस हो गया, तो यहाँ से 3 कट गया, तो यहाँ पे ये किसके बराबर आएगा सिंगल फेज के, यानी 3 फेज ऑफ इम्पीडेंस बेस इम्पीडेंस इक्वल टू सिंगल फेज ऑफ द बेस इम्पीडेंस इक्वल रहता है। इसीलिए हम सिंगल लाइन डायग्राम में यूज करते हैं। वी वर्क ऑन सिंगल फेज सर्किट बट क्लेम दैट दीज आर इक्विवेलेंट टू 3 फेज सर्किट। ठीक है, 3 फेज सर्किट को हम बार बार रिप्रेजेंट करना तो कॉम्प्लेक्स होता है, तो इसीलिए हम सिंगल लाइन डायग्राम यूज करते हैं। सिंगल लाइन डायग्राम पे हम सिंगल फेज क्वांटिटी यूज करते हैं, लेकिन क्लेम करते हैं कि दीज आर इक्विवेलेंट टू द 3 फेज सर्किट। ओके,
बैलेंस सिस्टम क्या होता है, न्यूट्रल करंट आपका जीरो होता है। सपोज दैट आपके 3 फेज हैं, आर फेज, वाई फेज, एम बी फेज, और ये आपका न्यूट्रल करंट। बैलेंस सिस्टम है तो न्यूट्रल करंट आपका जीरो होगा, तो न्यूट्रल पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा। इसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल पोटेंशियल को जीरो पावर बस कहते हैं, यानी न्यूट्रल लाइन। ठीक है, बस हम नेटवर्क यूज करते हैं, 10 बार हम सब स्टेशन की यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया जनरेशन, ट्रांसफार्मर, ट्रांसमिशन लाइन। तो ओम पर यूनिट, ओम पर यूनिट, ओम पर यूनिट। जेड बेस 3 फेज, जेड बेस 3 फेज, जेड बेस 3 फेज, यानी सिंगल फेज और 3 फेज आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर। ठीक है, तो जेड पर यूनिट की अगर हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो जनरेशन पार्ट को हम कैसे रिप्रेजेंट कर देंगे, उसका कुछ वोल्टेज लेवल, उसका सिंक्रोनस रिएक्टेंस, ये ट्रांसफार्मर का, और ये ट्रांसमिशन लाइन का इम्पीडेंस। ठीक है, और सपोज दैट यहाँ पे अगर फॉल्ट हो रहा है तो ये हमने यहाँ पे इसको फॉल्ट रिप्रेजेंट किया है। तो दिस रिप्रेजेंट एज ए 3 फेज सर्किट, बट इन सिंगल लाइन डायग्राम वी वर्क ऑन द सिंगल फेज सर्किट but claim that it is represent a 3 phase quantity. ओके, तो सिंगल लाइन डायग्राम क्या होता है, सिंगल लाइन डायग्राम रिप्रेजेंट ऑफ ए पावर सिस्टम नेटवर्क इंडिकेट द ओरिजिनल पावर सिस्टम इज 3 फेज and is working under balance condition. Okay, the advantage of balanced 3 phase system is by working on the single phase basis claim can be made for 3 phase analysis. That is, the neutral of the balanced 3 phase system is known as zero power bus and the all per unit calculation are on the basis of single phase, but the final answer are the 3 phase quantities. Okay, तो यहाँ पे हम एक जेड पर यूनिट ओल्ड और न्यू का कॉन्सेप्ट डिस्क्राइब करेंगे। सपोज दैट अभी हमने पीछे देखा, जेड पर यूनिट की बात करेंगे, ओल्ड की बात करेंगे यानी पुराना वाला, तो जेड एक्चुअल अपान जेड बेस ओल्ड वाला। तो यहाँ पे जेड बेस ओल्ड की वैल्यू हम क्या रखेंगे, किलोवाट स्क्वायर डिवाइड बाई एमवीए फ्रॉम द प्रीवियस फॉर्मूला। अगर हम न्यू की बात करेंगे, जेड पर यूनिट न्यू क्या आएगा, जेड एक्चुअल अपान जेड बेस, जेड एक्चुअल अपान जेड बेस की वैल्यू क्या होगा, जेड किलोवोल्ट न्यू का स्क्वायर डिवाइड बाई एमवीए बेस न्यू। ठीक है, तो यहाँ पे जेड एक्चुअल की वैल्यू ये इस वाले ओल्ड वाले फॉर्मूले से जेड एक्चुअल की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। ठीक है, तो ये वैल्यू पुट करेंगे तो जेड पर यूनिट नहीं क्या आएगा, जेड पर यूनिट ओल्ड इंटू किलोवोल्ट ओल्ड इज डिवाइड बाई किलोवोल्ट न्यू का होल स्क्वायर इंटू एमवीए न्यू अपॉन एमवीए बेस। ठीक है, सपोज दैट अगर हमें क्वेश्चन ओम में दिया हुआ है, ठीक है, यानी रियल क्वांटिटी में ओम में दिया हुआ है, उसका पर यूनिट निकालना है तो हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं, किलोवोल्ट स्क्वायर डिवाइड बाई एमवीए बेस। अगर पर यूनिट में निकालना है, ओल्ड पर यूनिट दिया है, नए पर यूनिट नए बेस क्या होगा, तो इस वाले फॉर्मूले से हम यूज़ करेंगे। अभी हम आगे देखेंगे, इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी आप समझ लीजिए बस, जेड पर यूनिट इक्वल टू क्या होगा, जेड पर यूनिट ओल्ड इंटू एमवीए, यानी पावर जो होगा न्यू अपान ओल्ड है, और यहाँ पे वोल्टेज में क्या है, स्क्वायर है, लेकिन ओल्ड अपान न्यू है। ठीक है, ये याद रखिए कि न्यू है, न्यू की बात करेंगे तो एमवीए न्यू वाला रखेंगे और एमवीए ओल्ड नीचे रहेगा, और वोल्टेज होगा जस्ट इसका रिवर्स लेकिन स्क्वायर के टर्म में। ठीक है, अब सपोज दैट ये हमने एग्जांपल लिया हुआ है, जनरेटर और ट्रांसफार्मर कर लिया है। ठीक है, 10 किलोवोल्ट एमवीए और यहाँ पे रिएक्टेंस कितना है, ओम में। ठीक है, ये G2 की रेटिंग क्या दी हुई है, 10 किलोवोल्ट 20 G2 कितना दिया, 0.2 पर यूनिट में दिया हुआ है। ठीक है, मैं यही कर रहा था कि ओम में दिया है तो पर यूनिट में दिया है तो कैसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दिया गया कि बेस वैल्यू हमें ये लेना है, 10 किलोवोल्ट वोल्टेज लेना है, 30 एमवीए पावर लेना है। तो यहाँ पे आपको 0.2 ओम में दिया हुआ है, तो इसके लिए क्या होगा, जेड बेस इक्वल टू क्या होगा, इस फॉर्मूले से, मतलब ये जो बेस दिया हुआ है किलोवोल्ट स्क्वायर डिवाइड बाई एमवीए, ये हो गया 4 ओम। ठीक है, तो SG1 पर यूनिट की बात करेंगे। ठीक है, ओम में कैसे आंसर आया, किलोवोल्ट स्क्वायर डिवाइड बाई एमवीए, तो ये हो गया 4 ओम। SG1 को अगर पर यूनिट करेंगे एक्चुअल वैल्यू अपान बेस वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू डिवाइड बाई बेस वैल्यू, तो ये कितना आ गया, ये। अब जनरेटर G2 की बात करेंगे तो ये आपका ओल्ड दिया हुआ है, तो ओल्ड इंटू एमवीए न्यू, देखिए एमवीए न्यू डिवाइड बाई एमवीए ओल्ड। ठीक है, एमवीए G2 के लिए एमवीए ओल्ड कितना है, 20। इसी प्रकार वोल्टेज का एमवी किलो वोल्ट न्यू कितना है, 10, किलो वोल्ट ओल्ड कितना है, 10, तो 10/10 का होल स्क्वायर, ये कितना होगा, X।
So these are the represent in per unit system. Next है and selection of the base value when the transformer is present in the network. Suppose that आपका जनरेटर दिया है, ट्रांसफार्मर दिया है, ट्रांसमिशन लाइन, फिर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर और ये आपका जनरेशन J2 और सपोज दैट यहाँ पे आपका लोड लगा है, यहाँ पे शो नहीं किया है लेकिन सपोज दैट यहाँ पे लोड किया है. तो दिस रिप्रेजेंट द पावर सिस्टम. तो इसमें इस क्वेश्चन में हमें क्या यूज करना है, ड्रा द पर यूनिट इक्विवेलेंट रिएक्टेंस डायग्राम टेकन कॉमन बेस इक्वल टू 20 MVA. ठीक है, बेस वैल्यू कितना लेना है पावर का, 20 MVA लेना है. ठीक है, क्वेश्चन 2 क्या है, ए 3 फेज फॉल्ट अगर ऑन बस 2 पे एक फॉल्ट होता है. ठीक है, यहाँ पे फॉल्ट होता है तो रिड्यूस द नेटवर्क इन द थेवेनिन इक्विवेलेंस. तो उस फॉल्ट के बाद इस पूरे सिस्टम को आप थेवेनिन इक्विवेलेंस के टर्म में रिप्रेजेंट कीजिए. ठीक है, तो सोल्यूशन इसके लिए हम क्या देखेंगे, यहाँ पे आप ये एक चीज़ ध्यान रखिए, सबकी रेटिंग दी हुई है. ठीक है, T1 की रेटिंग दी हुई है, लाइन की दिया हुआ है, T2 का दिया हुआ है और G2 का दिया हुआ है. ठीक है, तो क्वेश्चन में ये गिवन है कि 20 MVA आपको हर जगह आपको बेस पावर मानना है. यानी इसके लिए 20, यहाँ पे ओल्ड कितना है 10, न्यू क्या है 20, यहाँ कितना है 15, न्यू क्या है 20, यहाँ पे 25 MVA, यहाँ पे कितना है न्यू 20 MVA, यहाँ पे 15 MVA है, यहाँ पे 20 MVA है. ठीक है, न्यू आपका 20 है, ओल्ड आपका 15 है, मतलब ओल्ड आपका हर जगह डिफरेंट है. ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ट्रांसफार्मर के लिए हम देखते हैं. ट्रांसफार्मर में आपका 2 ट्रांसफार्मर है, T1 एंड T2. इधर आपका लो साइड है, इधर आपका हाई साइड. यहाँ पे आपका ट्रांसमिशन लाइन है, यहाँ पे आपका नेक्स्ट ट्रांसफार्मर T2 है, तो इधर हाई वोल्टेज, इधर लो वोल्टेज साइड. ठीक है, तो लो वोल्टेज साइड में इधर 20 MVA लेना है, इधर 20 MVA लेना है. इसी प्रकार T2 के लिए इधर 20 MVA लेना है, इधर 20 MVA लेना है. वोल्टेज लेवल आपका क्या है ट्रांसफार्मर के लिए, इधर आपका 10 किलोवोल्ट इन द फिगर, इधर आपका 100 किलोवोल्ट, इधर आपका 100 किलोवोल्ट, इधर आपका 5 किलोवोल्ट और न्यू MV कितना है आपको 20 MV लेना है. ठीक है, तो ट्रांसफार्मर T1 के लिए जेड बेस कितना हो जाएगा, किलोवोल्ट स्क्वायर अपन MVA बेस, तो 10 स्क्वायर डिवाइड बाई 20, ये इधर 5 ओम. इसके लिए हायर साइड के लिए क्या होगा, 100 का स्क्वायर डिवाइड बाई 20, ये आपका 500 ओम आएगा बेस वैल्यू. इसी प्रकार ट्रांसफार्मर T2 के लिए हाई वोल्टेज साइड यानी ट्रांसमिशन का साइड कितना होगा, यही सेम होगा, 100 डिवाइड बाई 20 500. लो वोल्टेज साइड के लिए कितना होगा, 5 स्क्वायर डिवाइड बाई 20, ये आपका बेस इम्पीडेंस आएगा. ठीक है, अब हम इंडिविजुअली जनरेशन G1, G2, T1, T2 और ट्रांसमिशन लाइन के लिए न्यू पर यूनिट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, तो सपोज दैट GE1 है, लो वोल्टेज साइड फॉर T1, G1 कितना है 0.4. ठीक है, ये आपका एक्चुअल वैल्यू है, डिवाइड बाई पर यूनिट में चेंज करना है, तो एक्चुअल वैल्यू डिवाइड बाई बेस वैल्यू. ठीक है, अभी हम इसके पहले हमने देखा था कि बेस वैल्यू कितना आया था ट्रांसफार्मर T1 के लो साइड में 5 आया था, तो इसके लिए हमने यहाँ डिवाइड कर दिया, तो ये पर यूनिट हो गया. इसी प्रकार G2 ऑन द लो वोल्टेज साइड. ठीक है, G2 ऑन द लो वोल्टेज साइड में आपका क्या है, तो ये देखिए क्वेश्चन में G2 आपका लो वोल्टेज साइड, इधर हाई वोल्टेज, इधर लो वोल्टेज साइड आप G2. ठीक है, तो आपका कितना दिया हुआ है 0.2 पर यूनिट दिया हुआ है, 5 किलोवोल्ट और 10 MVA दिया है, और न्यू बेस क्या है 20 MVA. ठीक है, तो इसके लिए न्यू वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, जो G2 न्यू क्या होगा, ओल्ड डिवाइड बाई इंटू MVA न्यू डिवाइड बाई MVA ओल्ड इंटू किलोवोल्ट ओल्ड अपन किलोवोल्ट न्यू का होल स्क्वायर, ये होगा G2. T1 क्या होगा, T1 का लो वोल्टेज साइड कितना दिया हो 0.2 ओम, हाई वोल्टेज साइड कितना होगा, नंबर ऑफ टर्न्स का मल्टीप्लाई इंटू 0.2 का दीजिए 20 होगा. ठीक है, तो सपोज दैट लो साइड के लिए बेस इम्पीडेंस कितना था 500 और हाई वोल्टेज साइड के लिए इम्पीडेंस कितना था 500 ओम. ठीक है, तो लो वोल्टेज साइड में तो 0.2 डिवाइड बाई 5 कर दीजिए, इतना आएगा. और हाई वोल्टेज साइड में इम्पीडेंस कितना है 20 ओम और डिवाइड बाई बेस वैल्यू कितना है, इतना, दोनों बोथ आर इक्वल. ठीक है, पर यूनिट का एडवांटेज यही है
कि आपको लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज साइड रिफर नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। इसी प्रकार टीपी क्या होगा, हाई वोल्टेज साइड इतना दिया हुआ है 100 किलो वोल्ट और 15 पे है, तो न्यू निकाल दीजिए, ओल्ड इंटू एमवीए न्यू अपन एमवीए ओल्ड इंटू किलो वोल्ट ओल्ड अपन किलो वोल्ट न्यू का होल स्क्वायर, ये हो गया। एक्स लाइन कितना है 400 ओम दिया हुआ है, बेस वैल्यू कितना है हमने निकाला था 500 ओम, ये हो गया 0.8 पर यूनिट, ठीक है। अब हम इसको सिंगल लाइन डायग्राम में रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ये आपका G1 हो गया, जनरेटर की रेटिंग 10 किलो वोल्ट और 10 बेस हमने लिया, 10/10 1 पर यूनिट हो गया। इसका एक G1 की वैल्यू जो हमें यहाँ अभी ऊपर एक G1 कैलकुलेट करना है उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, एक्स T1 की जो वैल्यू है उसको आप कैलकुलेट कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे हाई वोल्टेज लो वोल्टेज साइड सब आपकी इक्वल है। फिर आपका ट्रांसमिशन लाइन के लिए कितना है 0.8 पर यूनिट, इसी प्रकार ट्रांसफार्मर T2 के लिए लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज साइड सब इक्वल है। और राइट साइड में सबसे आपका जनरेटर G2 था, तो उसके लिए इम्पीडेंस क्या होगा 5 किलो वोल्ट था, तो बेस वैल्यू कितना है एक्चुअल 5 बेस वैल्यू 5, तो 1 पर यूनिट, और ये आपका X G2 वैल्यू, ठीक है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि यहाँ पे बस 2 पे आपका फॉल्ट होता है, ठीक है। बस 2 पे फॉल्ट होकर थेवेनिन इक्विवेलेंट निकाल लिया, ठीक है। तो ये आपका न्यूट्रल लाइन है, ये आपका यहाँ पे फॉल्ट होता है। तो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आप इस पॉइंट और इस पॉइंट को आप पकड़ लीजिए, ठीक है। और एक सर्किट ये हो रहा है, एक सर्किट ये हो रहा है, बोथ आर कनेक्टेड इन द पैरेलल, यानी वन पैरेलल पाथ इधर वन पैरेलल पाथ इधर, ठीक है। तो पैरेलल में वोल्टेज है तो आपका पैरेलल इक्विवेलेंट आएगा, यानी 1 पर यूनिट यहाँ 1 पर यूनिट यहाँ पे है, तो ये पैरेलल 1 वोल्ट आएगा, ठीक है। और ये जो इम्पीडेंस है ये सीरीज में है और ये भी सीरीज में है। ओवरऑल क्या होगा, इसको ऐड कर लीजिए, इन तीनों को ऐड कर लीजिए, ओवरऑल ये पैरेलल में, ठीक है। तो दोनों को ऐड करके सीरीज में ऐड करने के बाद इसका इस ब्रांच को और इस ब्रांच को आपस में पैरेलल इक्विवेलेंट निकाल दीजिए, ठीक है। तो पैरेलल इक्विवेलेंट क्या था R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, तो नेट इक्विवेलेंट क्या था 0.12, ठीक है। तो फॉल्ट 2 यहाँ पे हुआ, तो थेवेनिन इक्विवेलेंट कितना हुआ, थेवेनिन इक्विवेलेंट क्या होता है वोल्टेज सोर्स इनटू इम्पीडेंस यानी इंटरनल रेजिस्टेंस, और यहाँ पे ओपन सोर्स ओपन टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है। यहाँ पे आपका फॉल्ट हुआ था, ठीक है। इसी को हमने कहा कि इसको आप पकड़ लीजिए, बाकी सारे को अरेंज कर दीजिए, ये आपका वोल्टेज, ये आपका थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो दीज आर द बेसिक पर यूनिट इम्पीडेंस डायग्राम ऑफ द पावर सिस्टम। So these are the basic concept of the power system and per unit methods and single line diagram and per unit impedance diagram of the power system. Okay, thank you class.